আসমানি কিতাব কয়টি গো? আসমানি কিতাব কয়টি? কথা বলবেন একটু। এই পৃথিবীর জমিনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আসমানি কিতাব কয়টা পাঠিয়েছিলেন জানা আছে আপনাদের? আসমানি কিতাব মানে আল্লাহর কিতাব। এবার আপনারা গণতি করবেন যে আসমানি কিতাব আসলে কয়টি, ঠিক আছে? ও আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় মা বোনেরা, মনোযোগ সহকারে শুনবেন হাদিসগুলো শোনা। এক নম্বরে, এই পৃথিবীর জমিনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 1,24,000 মতান্তরে 2,24,000 পয়গম্বর পাঠিয়েছেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। তার মধ্যে সর্বপ্রথম এই পৃথিবীর মধ্যে হযরত আদম আলাইহিস সালাম, অর্থাৎ আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে এই পৃথিবীর মধ্যে পাঠিয়েছিলেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। তিনি এই পৃথিবীর জমিনে 1000 বছর জীবিত ছিলেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। তিনার উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 10টি সহিফা কিতাব নাযিল করেছেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। তারপর হযরত শীশ আলাইহিস সালাম এই পৃথিবীতে আসলেন। তিনার উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 50টি সহিফা কিতাব নাযিল করেছেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। তিনি এই পৃথিবীতে 900 বছর জীবিত ছিলেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। তারপর হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালাম এই পৃথিবীতে আসলেন। তিনি এই পৃথিবীর জমিনে 65 বছর ছিলেন। তিনি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেননি, তিনি আছেন জান্নাতে, বলুন সুবহানাল্লাহ। তিনার উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 30টি সহিফা কিতাব নাযিল করেছেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। তারপর হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এই পৃথিবীতে আসলেন। তিনি 1400 বছর জীবিত ছিলেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। তারপর হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এই পৃথিবীতে আসলেন। তিনার উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 10টি সহিফা কিতাব নাযিল করেছেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তারপর ও আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় মা বোনেরা, তারপর হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম, মুসা আলাইহিস সালাম এই পৃথিবীতে আসলেন। তিনার উপর আল্লাহ রাব্বুল একটি কিতাব নাযিল করেছেন, সেই কিতাবের নাম কি? তাওরাত, বলুন সুবহানাল্লাহ। তারপর হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এই পৃথিবীতে আসলেন। তিনার উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটি কিতাব নাযিল করেছেন, সেই কিতাবের নাম কি? জবর, বলুন সুবহানাল্লাহ। তারপর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এই পৃথিবীতে আসলেন। তিনার উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটি কিতাব নাযিল করেছেন, সেই কিতাবের নাম ইনজিল, বলুন সুবহানাল্লাহ। তিনিও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেননি, তিনি আছেন জান্নাতে, বলুন সুবহানাল্লাহ। তিনি আসবেন আমার আখিরি নবীর উম্মত হয়ে, তিনি এই পৃথিবীতে আসবেন। 40 বছর রাজত্ব করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। তারপর 569 বছর পরে আমাদের সৌভাগ্যের কারণে আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানিতে সৃষ্টির সেরা 18,000 মাখলুকাতের সৃষ্টির ওসিলা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম 570 খ্রিস্টাব্দে এই পৃথিবীতে তাসলিম নিলেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। তিনার উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটি কিতাব নাযিল করেছেন, সেই কিতাবের নাম কি? সেই কিতাবের নাম কি গো? কোরআন মাজিদ, বলুন সুবহানাল্লাহ। আর ফুরকানি হাদিস। তাহলে মোট কিতাবের সংখ্যা কয়টি? 104টি, বলুন সুবহানাল্লাহ। কয়টি বললাম? 104টি। তার মধ্যে বড় কিতাব হচ্ছে 4টি, বলুন সুবহানাল্লাহ। ও আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় মা বোনেরা, সেই কোরআন সম্পর্কে আপনাদের সম্মুখে কিছু আলোচনা করে দিয়ে যায়। কারণ আমরা অনেকেই আছে কোরআন পড়তে জানলেও কিন্তু আমরা পড়ি না, কথা বলেন ঠিক কিনা? যখন পবিত্র মায়ের রমজান মুবারক মাস আসে, যার আর সুর আছে উজাড় করে দিয়ে কোরআন পড়লাম, কিন্তু রমজান শেষ, একদিনও কোরআন খুলে দেখার সময় আমাদের হয়ে উঠলো না, কথা বলেন ঠিক কিনা? কোরআনের উপর ধুলাবালি মাকড়সার জাল বাসা বেঁধে দিচ্ছে, কথা বলেন ঠিক কিনা? ও আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় মা বোনেরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানব ও জিন জাতির হিদায়াতের উদ্দেশ্যে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামের মারফত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বহু কিতাব নাযিল করেছেন। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব হচ্ছে এই কোরআন মাজিদ, বলুন সুবহানাল্লাহ। প্রত্যেকটা মুসলিমকে এই কোরআন মোতাবেক মেনে চলা ফরজ, বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই কোরআন সম্পর্কে আমি আপনাদের সম্মুখে কিছু কথা আলোচনা করে দিয়ে যাই। ও আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় মা বোনেরা, तो कुरान किसका कलाम है? कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो फिर कुरान की जो सूरा है, कुछ सूरा मक्की क्यों है और कुछ सूरा मदानी क्यों है? किस लिए मेरी माँ और बहन?
किस लिए? सूरा का नाम के पास है कि नहीं? सूरतुल फातिहा मक्की है कि नहीं? पीछे वाले बोलिए सूरतुल बकरा मदनी है कि नहीं? वो हमारे प्राणी अच्छी मां बोलेगा अल्लाह तो मक्की भी नहीं है, अल्लाह तो मदनी भी नहीं है, तो फिर कुरान में जो सूरा है कुछ सूरा मक्की क्यों है और कुछ सूरा मदनी क्यों है? किस लिए मेरी मां और बहन? हमारा नबी का शान देखिए, हमारा नबी का मान देखिए। रब ने हमारा नबी का शान इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया। अगर हमारा प्यारा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तब अगर सूरा नाजिल होता था वो सूरा मक्की हो जाता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह, दिल से बोलिए ना मेरी मां सुभान अल्लाह। और हमारा प्यारा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे तब अगर सूरा नाजिल होता था वो सूरा मदनी हो जाता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। ए है हमारा नबी का शान, ए है हमारा नबी का मान। रब ने हमारा नबी का शान इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया। अगर हमारा प्यारा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तब अगर सूरा नाजिल होता था वो सूरा मक्की हो जाता है। और हमारा प्यारा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे तब अगर सूरा नाजिल होता था वो सूरा मदनी हो जाता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह, दिल से बोलिए ना मेरी मां और बहनों सुभान अल्लाह। कुरान का और एक शान सुनिए मेरी मां और बहनों, दिल से सुनिए। सारी का सारी किताब को रब ने नाजिल किया। किसने? रब ने नाजिल किया। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। वो हमारे प्राणी अच्छे मां ने हमारे दिखे फॉलो करना। अल्लाह भी, कुरान भी अल्लाह का कलाम है, तौरात भी अल्लाह का कलाम है, इंजील भी अल्लाह का कलाम है, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है। तो फिर एक क्यों कहा जाता है कुरान उम्मुल किताब? एक क्यों कहा जाता है सब किताब का कुरान है? कुरान किस लिए मेरी मां और बहनों? किस लिए? अगर मैंने कुछ लिखूं वो मेरा कलाम कहलाएगा है कि नहीं? पीछे वाले बोलिए। और मेरा एक लिखा हुआ कलाम से दूसरा लिखा हुआ कलाम बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान मैंने लिखा है। तो फिर सारी का सारी किताब से रब ने नाज़िल किया। तो फिर एक क्यों कहा जाता है कुरान उम्मुल किताब? एक क्यों कहा जाता है सब किताब का कुरान है? कुरान किस लिए मेरी मां और बहनों? इंजील आसिल है कि ईसा रूहुल्लाह पर नाजिल हुआ, तौरात आसिल है क्योंकि मूसा कलीमुल्लाह पर नाजिल हुआ, ज़बूर आसिल है क्योंकि दाऊद खलीफतुल्लाह पर नाजिल हुआ। लेकिन कुरान की तरह कोई नहीं, कुरान की तरह कोई नहीं, क्योंकि मोहम्मद हबीबुल्लाह पर नाजिल हुआ। बोलिए ना सुभान अल्लाह, दिल से बोलिए ना मेरी मां और बहनों सुभान अल्लाह। उस नबी के ऊपर नाजिल हुआ जिसने पिछले तमाम नबी का सरदार, बोलिए ना सुभान अल्लाह। उस उम्मत के लिए नाजिल हुआ जो पिछले उम्मत से अफजल, सबसे आखिरी उम्मत तो एक काम के नहीं। मां और बहनों हमारा बात को गौर कीजिए। वो हमारे प्राणी अच्छी मां बोला उस उम्मत के लिए नाजिल हुआ जिसने पिछले तमाम नबी का सरदार, बोलिए ना सुभान अल्लाह। उस उम्मत के लिए नाजिल हुआ जिसने पिछले नबी का सरदार, बोलिए ना सुभान अल्लाह। सबसे आखिरी उम्मत एक काम के गहरे मुसलमानों अपनी किस्मत पर नाज कीजिए। हम उस नबी की उम्मत है जिसकी सहाबा पिछले तमाम सहाबा से अफजल, जिसकी घराना पिछले तमाम घरानों से अफजल, जिसकी किताब पिछले तमाम किताबों से अफजल, जिसकी औलाद पिछली तमाम औलादों से अफजल, जिसकी बीबियां पिछली तमाम बीबियों से अफजल, बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी मां और बहनों सुभान अल्लाह। कुरान के और एक शान सुनिए मेरी मां और बहनों, ध्यान से सुनिए। सारी का सारी किताब जो रब ने नाजिल किया, किस भाषा में नाजिल किया? अरबी भाषा में। तौरात अरबी भाषा में नाजिल हुआ था, लेकिन हज़रत मूसा ने उसकी नकल कर दिया। ज़बूर वो भी अरबी भाषा में नाजिल हुआ था, लेकिन हज़रत दाऊद ने उसकी अपनी भाषा में अपनी कौम को दे दिया। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुआ था वो भी अरबी भाषा में नाजिल हुआ था, लेकिन हज़रत ईसा ने उसकी अपनी भाषा में अपनी कौम को दे दिया। लेकिन मेरी मां और बहनों हमारा नबी पर जो किताब नाजिल हुआ है कुरान मौजूद, जिस तरह खुदा ने कुरान को नाजिल किया, जिस तरह खुदा ने कुरान को नाजिल किया, उसी तरह हमारा नबी ने
हम पर लुटा दिया, बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। उमर कुरान की और एक शान सुनिए मेरी माँ और बहनों, सारी का सारी किताब थी, किसने नाजिल किया? रब ने नाजिल किया। खुदा ने सिखाया कुरान किसको? नबी को। और नबी ने कुरान सिखाया किसको? आली को, बोलिए ना सुभान अल्लाह। इस तरह कुरान सिखाया, इस तरह कुरान सिखाया, सब कुछ उड़ाल के रख दिया मेरी माँ और बहनों, बोलिए ना सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हमारा नबी कह रहा है, हम अगर इल्म का शहर है तो आली का दरवाजा, बोलिए ना सुभान अल्लाह। हम अगर हिकमत का घर है तो आली का दरवाजा, बोलिए ना सुभान अल्लाह। वही बात मौला आली ने एक सहाबा से बोला, हुजूर, एक सहाबा से बोला जे अगर हमारा नबी से जो एक बार मिलेगा हमसे 2 बार मिलेगा। बेसरा साहबा सीधा सादा सा था, भाग हो गया, हमारा नबी के सामने बात बता दिया, हुजूर मौला आली कह रहा है आपसे अगर कोई 1 बार मिलेगा आली से 2 बार मिलेगा। ऐसा कहा, बुलाओ हमारा भाई आली को। आली आया, आली आपने ऐसा कहा हमसे अगर कोई 1 बार मिलेगा आपसे 2 बार मिलेगा। मौला आली कह रहा है, हुजूर ये तो मैंने नहीं कहा, ये तो आपने कहा। मैंने कहा, आपने तो बोला। आप अगर इल्म का शहर है तो आली उसका दरवाजा, आप अगर हिकमत का घर है तो आली उसका दरवाजा, तो आपका शहर है जो दाखिल होगा आपसे मिलने के लिए, आपका शहर है जो दाखिल होगा आपसे मिलने के लिए, आपसे 1 बार मिलेगा हमसे 2 बार मिलेगा, क्योंकि 1 बार आते हुए हमसे मिलेगा, 1 बार जाते हुए हमसे मिलेगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। 1 बार हाथ उठा के बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। इस तरह हमारा नबी ने आली को कुरान सिखाया, इस तरह कुरान सिखाया, सब कुछ उड़ाल के रख दिया, बोलिए ना सुभान अल्लाह। इस तरह कुरान सिखाया हमारा नबी ने आली को। अगर पूरा कुरान को मुख्तसर कर दिया जाए, मतलब शॉर्ट कर दिया जाए, तो रह जाएगा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह वद्दालिन तक। अगर सूरह फातिहा को भी मुख्तसर कर दिया जाए, मतलब शॉर्ट कर दिया जाए, तो रह जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी मुख्तसर कर दिया जाए, मतलब शॉर्ट कर दिया जाए, तो रह जाएगा बिस्मिल्लाह का बा। अगर बा को भी मुख्तसर कर दिया जाए, मतलब शॉर्ट कर दिया जाए, तो रह जाएगा बा का नीचे का नुक्ता, बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो मौला आली कह रहा है बा का नीचे का नुक्ता मैं हूं, बोलिए ना सुभान अल्लाह। इस तरह हमारा नबी ने आली को कुरान सिखाया, इस तरह कुरान सिखाया, सब कुछ उड़ाल के रख दिया मेरी माँ और बहनों। मतलब साफ है, अगर कुरान को समझ दो तो आली हो जाएगा, आली को फैला दो तो कुरान हो जाएगा, बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। तो हमारा बेटा एक साइंस का स्टूडेंट है, हमसे कह रहे हैं माँ मौला आली एक नुक्ता, वो कैसे? मौला आली एक नुक्ता। मैंने बोला बेटा जाओ भारत का मानचित्र हमारा सामने लेकर आओ। हमारा बेटा गया, भारत का मानचित्र हमारा सामने रख दिया। मैंने बोला बेटा दिखाओ पूरा भारत में बम्बई कहाँ पर है? हमारा बेटा कह रहे माँ देखिए ना नुक्ता। मेरी बात को गौर कीजिए मेरी माँ और बहनों, माँ देखिए ना ये नुक्ता। मैंने बेटा इस नुक्ता बम्बई है? बेटा कह रहा है हाँ माँ इस नुक्ता बम्बई है। मैंने बोला बेटा इस नुक्ता में गेट ऑफ इंडिया है? बेटा हमसे कह रहे हैं हाँ माँ इस नुक्ता में गेट ऑफ इंडिया है। मैंने बोला बेटा इस नुक्ता में बम्बई का 2 करोड़ लोग है? बेटा कह रहे हैं हाँ माँ इस नुक्ता में बम्बई का 2 करोड़ लोग है। मैंने बोला बेटा इस नुक्ता में बम्बई का सारी दुकानें हैं? बेटा कह रहे हैं हाँ माँ इस नुक्ता में मुंबई का सारी दुकानें हैं। मैंने बोला बेटा सुन, आप लोग भी गौर से सुनिए मेरी माँ और बहनों। मैंने बोला बेटा सुन, अगर किसी गुनाहगार ने बनाया हुआ नुक्ता में, अगर किसी गुनाहगार ने बनाया हुआ नुक्ता में पूरा बम्बई आ सकता है, तो परवरदिगार के बनाया हुआ नुक्ता में पूरा कुरान आ सकता है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। इस तरह हमारा नबी ने
आली को कुरान सिखाया, इस तरह कुरान सिखाया, सब कुछ उड़ाल के रख दिया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। जिसके दिल में आली नहीं, जिसके दिल में आली नहीं वो कभी ओली नहीं बन सकता है कि नहीं? जिसके दिल में आली नहीं वो कभी ओली नहीं बन सकता, और जिसके दिल में आली है वो बेशक ओली बन सकता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। किसी जालिम ने अगर कुरान को मिटाना चाहे तो कुरान के एक आयत नहीं, सब जबर से हिला के दिखाए कितना माँ का दूध क्या है तो उसकी नस्लें सड़ जाएगी, उसकी नस्लें तबाह हो जाएगी। एक नुक्ता भी नहीं मिटा सकता। कुरान सिर्फ मदीना में नहीं, कुरान सिर्फ मदीना में नहीं, बल्कि हाफिजों की सीने में भी कुरान मौजूद है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। जब जब कोई कुरान को मिटाना चाहे तो उसके सामने हजारों हाफिजों कुरान खड़ा हो जाएगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। वो हमारे प्राणे अच्छे प्रिय माँ बोलेरा अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर की नाम लो अल्हम्दুলিল্লাহ। শ্বশুরের নামে শাশুড়ির নামে 500 টাকা নগদ বলুন সুবহানাল্লাহ। ও আমার প্রাণের প্রিয় মা বোনেরা, গভীর মনোযোগ শোনা। বাতিলটা যতই বকবক করুক আপনারা এদিক ওদিক কান দিবেন না, শোনা। ও আমার প্রাণের প্রিয় মা বোনেরা, সেই জন্য তো কবি বলে দিয়েছেন বাতিল না জব জব फैला है तेवर आया है तब तब मेरे जुबां पर। बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। दुश्मन जो तुई दुश्मनी करलो ততবার আমার মুখে আসলো বলো নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার। 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 বলো নারায়ে সিদ্দিক ফারুক ওসমান হায়দার চারজন সাহাবা সবচেয়ে বেহতর। কারণ তাদের দিলে আছে আল্লাহর পয়গম্বর। বলো নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার। 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 বলো নারায়ে সালাত ইয়া রাসূল আল্লাহ। বলো নারায়ে রাসূল। দেখা দাও ও গো নবীজি তোমার